نیو یارک سے پاکستان کرسچین ایسوسی ایشن USA کے چیئرمین ولیم شہزاد نے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے پیغام میں تمام پاکستانیوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ پر کرسچین خاتون سیکورٹی آفیسر کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کرسمس کی مبارکباد کو غلط معنی پہنانے پر بھی اظہار افسوس کیا۔ بانیان پاکستان کا عزم اور آئین پاکستان اقلیتوں کو برابری کا حق دیتا ہے۔ ایسے واقعات افسوسناک ہیں جن کا تدارک ضروری ہے۔ یہ ICG کارگو پہ میری جاب ہے، میں سیکورٹی انچارج ہوں یہاں پر، اور یہ گاڑی کلیئرنس ایجنٹ کا بھی نہیں بنا ہوا۔ یہ گاڑی میں نے کافی عرصہ پہلے نکال دی، اس کی میں نے اپنے افسروں کو رپورٹ بھی کر دی تھی کہ یہ گاڑی اندر نہیں آئے گی، ایجنٹ کی گاڑی تو الاؤ ہی نہیں ہے، کلیئرنگ ایجنٹ، اور ایجنٹ بھی اس کا پاس نہیں ہے پراپر۔ تو میں نے بہت دفعہ اپنی ڈیوٹی میں نکالی ہے، آج بھی میرے سامنے سیکورٹی گارڈ نے نکالی چھوڑ دی اندر، تو میں نے اس کو ڈانٹا۔ یہ سیکورٹی والے چھوڑ دیتے ہیں پرائیویٹ گارڈ، وہ بولتے ہیں ہمیں یہ سلیم کہتا چھوڑ دو، تو میں نے اس کو بولا گاڑی نکالو باہر آج۔ تو سلیم میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے گاڑی چھوڑو، یہاں 70 گاڑیاں اور بھی ہیں۔ تو میں نے کہا 70 گاڑیاں تو آپ مجھے نام لکھ کے دے دو، سب کو نکال دیتے ہیں، پاس بھی میں نے کہا آپ لوگ بناتے ہیں، ہم تھوڑی بناتے ہیں، ہمیں لسٹ دے دو گارڈوں کو جیسے پہلے دیتے ہو۔ تو بولتا ہے میں ٹھیک ہے ابھی میں مولویوں کو اکٹھا کرتا ہوں تو تمہارے پہ توہین رسالت کا الزام لگاتا ہوں۔ تو میں نے کہا لگا دو، میں فیس کر لوں گی، نہ میں نے کبھی کوئی گالی کسی کو دی ہے نہ کچھ۔ میں نے کہا تمہیں اگر غلط لگتا ہے کہ گاڑیاں سے زیادہ ہیں تو تم ان گاڑیوں کا نمبر خود اپنا بندہ یہاں کھڑا کرو، وہ نہیں اندر آنے دے، اور مجھے بولے تمہارے پہ توہین رسالت کا الزام لگاتا ہوں۔ میں نے کہا تو لگا، میں خود ہی فیس کر لوں گی۔ اب تو لگانے والے کو بھی پنش ہونی چاہیے نا، جھوٹا لگانے والا جو ہو۔ اب یہ شہروں کے اندر اگر کوئی کرسچن لیڈی انچارج بن گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توہین رسالت کا الزام لگ جائے۔ گاڑی کا ایشو ہے، وہ میں نے بالکل صحیح، میں نے کہا مجھے کہلوا دو، اپنے افسروں سے کہلوا دو، کنسرن جو بھی افسر ہے میں گاڑی چھوڑ دوں گی، میں نہیں چھوڑوں گی گاڑی۔ اور مجھے یہاں پر جو میری ڈپلائمنٹ ہوئی تھی، ایئر کموڈور فضل بن اللہ صاحب تھے ڈائریکٹر سیکیورٹی، وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے ہیں، انہوں نے کی تھی کیونکہ میں اچھا کام کرتی ہوں رول ریگولیشن کے حساب سے۔ اور یہ جب جاری جناتا کا شیڈ بنا تھا، جب یہ میرے سامنے ہی بنا ہے، میری 2017 سے یہ پوسٹنگ ہوئی ہے، اور سسپیکٹڈ پرسنز کو یا انلیگل ایکٹیویٹیز کو روکنے میں ہم نے بہت کام کیا ہے۔ یہ جو دیوار ہے کارگو کی ICG، یہ میں نے ہی ریکمینڈ کرائی تھی، یہاں گرلز لگی تھی، تو گرلز کے اندر سے لوگ چور کودتے تھے، لوگ سامان لگیج پاس کرتے تھے، تو میں نے یہ ساری رپورٹس بنا کے کمڈور ریٹائرڈ فضل بن اللہ صاحب کو کی تھی، تو انہوں نے یہ سب سے پہلے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو ہیپی نیو ایئر کہتا ہوں، اور نیو ایئر کی خوشیاں تمام دنیا میں لوگ بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو کل کراچی میں واقعہ ہوا ہے پارکنگ لاٹ پہ ایک خاتون کے ساتھ جو کہ سیکیورٹی گارڈ تھی، اور اسے پارکنگ لاٹ میں کار پارکنگ کی وجہ سے توہین رسالت کا کیس اس پہ ٹھوکنے کی کوشش کی گئی، اور میں جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے اس کا شکر گزار ہوں، اور میرے خداوند نے انہیں اس گناہ سے باعزت نکالا ہے۔ ان لوگوں پہ خاص کر کے جو آصف علی زرداری صاحب نے بولا کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، میں پیپلز پارٹی کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کی خاص کر کے مذمت کرتا ہوں کہ ایسے بہت سارے کیس ہیں جو کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو بھی ٹھوکے گئے ہوئے ہیں اور جیلوں میں ہیں، ان پہ بھی نظر ثانی کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیو یارک میں جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت ذہین لوگ ہیں جو کہ کرسچن کمیونٹی کو میری کرسمس کہنے پہ لانگ تان کر رہے ہیں، اور انہیں خداوند میرا عقل اور دانائی دے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں میری کرسمس بولیں یا ہیپی ہولیڈے بولیں، بھائی ہمیں آپ کا نہ تو میری کرسمس کا چاہیے گفٹ، نہ ہی ہیپی ہولیڈے کا، اور میرا خداوند آپ کو بہت ساری برکتیں دے اور خداوند آپ کو خوش رکھے۔
मुल्क भर में आटा बहरान क्यों पैदा हुआ? जराए का कहना है कि मुल्क में गंदम का वसी स्टॉक होने के बावजूद आटा बहरान पैदा हुआ। जराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक मुल्क में गंदम का 44,37,000 मैट्रिक टन स्टॉक मौजूद है। गंदम का मौजूदा स्टॉक अप्रैल के आखिर तक के लिए काफी है। 13 लाख मैट्रिक टन दरामदी गंदम मौजूदा स्टॉक के अलावा मौजूद होगी। जराए का कहना है कि पंजाब के पास 106 दिन का 22,05,000 मैट्रिक टन स्टॉक है। सिंध के पास 98 दिन की 8,37,000 मैट्रिक टन गंदम है। जराए के मुताबिक केपी के पास 152 दिन की 6,46,000 मैट्रिक टन गंदम है। सूबे की जानिब से मिल्स को वादों के बावजूद कम गंदम जारी की जा रही है। सरकारी गंदम कम जारी होने से ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ गई। जराए का कहना है कि सिंध यौमिया 10,000 की बजाय 8,000 मैट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को दे रहा है। पंजाब सरकारी गंदम 25,000 की बजाय 20,000 मैट्रिक टन गंदम मिल्स को जारी करता है। बलूचिस्तान 1,000 की बजाय 350 मैट्रिक टन गंदम मिलों को जारी कर रहा है। जराए के मुताबिक केपी सरकारी गंदम 6,000 की बजाय 4500 मैट्रिक टन यौमिया जारी कर रहा है। जराए का कहना है कि सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर होने से जखीरा अंदोजी बढ़ गई। सूबे पास्को के पास मौजूद अपने कोटे की गंदम उठाने से गुरेजा है। बलूचिस्तान भी पास्को की गंदम महंगी करार देकर उठाने से गुरेजा है। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को किस मुल्क ने कितनी इमदाद देने का ऐलान किया, इसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। पाकिस्तान की सरबराही में स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मौसमियाती तबाहकारियों के बायस होने वाले नुकसान के अजाले और मदद के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में आलमी इदारों और ममालिक ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद की बहाली के लिए 10 अरब डॉलर से जायद इमदाद देने का वादा किया है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया है कि इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ देने का ऐलान किया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर का वादा किया गया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बरादर मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद के लिए 1 अरब डॉलर का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर का ऐलान बहाली के काम में ताउन के लिए किया है। वजीर इत्तलात ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.5 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने 50 करोड़ यूरो का ऐलान किया। जर्मनी ने 8 करोड़ 80 लाख यूरो देने का वादा किया है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि चीन ने 10 करोड़ डॉलर का ऐलान किया। जापान ने पाकिस्तान के लिए 7 करोड़ 70 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान किया, जबकि यूएस एड ने 10 करोड़ डॉलर और फ्रांस ने 34 करोड़ 50 लाख डॉलर का ऐलान किया है। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से 1 अरब डॉलर और बरतानिया की जानिब से 90 लाख पाउंड्स का ऐलान किया गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आलमी मालियाती फंड IMF प्रोग्राम बहाल होने से डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। उन्होंने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में उम्मीद से ज्यादा इमदाद मिली है, इससे IMF के साथ मुज़ाकरात में आसानी होगी। जून के बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ सकता है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हर 1 अरब डॉलर से मसाइल 4 हफ्ते के लिए टल जाते हैं। आज पाकिस्तानी प्लॉट नहीं डॉलर खरीद रहा है। तरसीलात 10% कम हो गई हैं। तिजारती और करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए डॉलर महंगा हो जाए तो हर्ज नहीं। डॉलर असल में 260 रुपए का है। IMF से मुआहिदा होने से डॉलर की तलब कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कतर को LNG पावर प्लांट की फरोख्त खुशाइंद है। ऐसा नहीं कि IMF रियायत नहीं देता, बात करने से बात बन जाती है। मैंने जो काम किया शहबाज शरीफ की इजाजत से किया। नून लीग हटा देगी तो घर जाकर बैठ जाऊंगा, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सऊदी अरब और चीन से नए कर्ज पर बात हो सकती है। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान से डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करने और मसनूई पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर IMF वफ़द से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मुलाकात करेंगे, जिसमें IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करे, एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म करे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का प्लान देना होगा, जिसके लिए डीजल पर लेवी फौरी 32.5 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए लीटर करना होगी। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा, जिसके लिए गैस के रेट बढ़ाना होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया है कि IMF सब्सिडीज का खात्मा चाहता है। IMF टैक्स आमदन में 300 अरब रुपए के इजाफे का मुतालबा भी कर रहा है। पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने होंगे।
IMF बिजली का फी यूनिट रेट 3.5 रुपए बढ़ाने का मुतालबा कर चुका है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF से रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना IMF की MD से भी मुलाकात करेंगे। दुनिया की तारीख में पहली बार AI टेक्नोलॉजी से लैस एक रिपोर्ट वकील की हैसियत से अदालत में केस लड़ने वाला है। फरवरी 2023 में एक अमरीकी अदालत में डोनाट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामी कंपनी का तैयार करदा ये डिजिटल वकील पार्किंग टिकट के केस में एक शख्स का दिफा करेगा। स्मार्टफोन एयरपीस के जरिए ये AI रिपोर्ट अदालती कार्रवाई को सुनकर एयरबड के जरिए मुद्दा आलिया को दिफा के लिए दलाइल फराहम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुद्दा आलिया की जानिब से अदालत में वही कुछ कहा जाएगा जो AI रिपोर्ट की जानिब से उसे कहा जाएगा। रिपोर्ट्स में मुद्दा आलिया की शनाख्त या अदालती समात के मकाम के बारे में नहीं बताया गया। डोनाट पे के बानी जोशवा ब्रोडर ने दावा किया है कि AI लीगल असिस्टेंट को तरबियत देने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है और हमेशा सच बोलता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अदालत AI बोर्ड की जानिब से फराहम की जाने वाली मुआवनत से आगाह है तो उन्होंने कहा यकीनन नहीं। कंपनी के मुताबिक डोनाट पे ऐप दुनिया के पहले रिपोर्ट वकील का घर है जो इदारों से लड़ सकता है और ब्यूरोक्रेसी को हरा सकता है। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।